Okay, welcome back. We'll continue from where we stopped. और आपका स्वागत है और जहां हम लोगों ने खत्म किया था वहां से शुरू करें। Okay, so I just realized we have a lot of content left. और मैंने अभी अभी यह जाना कि बहुत सारी बातें अभी हमें सीखनी है। And so I'll go a little quick, I'll go a little fast. I may not explain all the points, but just track along with me. तो मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट जल्दी जाऊंगा। मैं सारी बातों को व्याख्या नहीं करके समझाऊंगा, तो कृपया मेरे साथ आप बने रहिएगा। Right? So when the glory of God comes, signs, wonders, and miracles are a common occurrence. तो जब परमेश्वर की जो महिमा आती है तो चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम एक संदेश होते हैं दिखने के लिए इसके। So as a church, we must pray for the glory of God to fill the church. और एक कलीसिया के रूप में हमको यह प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर की महिमा हमारे कलीसिया को भर दे। What does the Bible say? When 2 or 3 are gathered in His name, He is present. बाइबल क्या बताती है कि जब 2 या 3 उसके नाम में उपस्थित रहते हैं तो वो क्या होता है? उपस्थित रहता है। So the Holy Spirit is there. पवित्र आत्मा वहां पे है, His glory is there. उसकी महिमा वहां पे है। We can expect a move of God in that place. और फिर परमेश्वर के काम की अपेक्षा हम कर सकते हैं उस जगह में। The Bible says that, you know, when the Spirit comes, He will reveal what is that of the Father to us. और जब आत्मा आती है तो वो बताती है कि परमेश्वर पिता का हृदय में क्या है, वह हमें। He will glorify the Father. वह पिता की महिमा करेगा। And we are to, you know, join with the Holy Spirit to glorify the Father. और हम उस पवित्र आत्मा के साथ मिलने के लिए हम पिता का महिमा करते हैं। Now, sadly, in the Old Testament, if you read some of the passages, it's very sad to see that the glory of God departs from the temple for some time. और ये बहुत दुख की बात है, पुराने नियम में हम कभी-कभी देखते हैं कि कुछ समय के लिए परमेश्वर की महिमा उस मंदिर से निकल जाती है। Right? One was because Israel was continually in sin. यह कारण उसमें से एक था कि इज़राइल जो थे वह लगातार पाप में था। And secondly, it was also because that the Philistines came and captured, the enemies captured the Ark of the Covenant. और जो शत्रु थे, जो फिलिस्तीनी थे, वह आकर वाचा का संदूक को चुरा के ले गए थे। And that's when the glory of God departed. तब वहां पर जाकर परमेश्वर की महिमा चली गई। But now in the new covenant, लेकिन अभी नए वाचा में we are the temple. हम मंदिर हैं। We are the temple of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। The glory of the Lord resides in us. और परमेश्वर की महिमा हम में रहती है। And it is supposed to be released and manifested through us. और उसको हमारे जरिए दिखाना जरूरी है। In the book of Ezekiel, he's talking about the future temple, talking about the temple that we will see in the future. और यहेजकेल की किताब में वह उस भविष्य काल के मंदिर के बारे में बताता है जो हम बनेंगे। Revelations 21:22 says, but I saw no temple there. और प्रकाशित वाक्य 21 का 22 में लिखता है कि मैंने कोई मंदिर नहीं देखा। For the Lord God Almighty and the Lamb of God itself was the temple. क्योंकि जो परमेश्वर जो सर्वशक्तिशाली है और उसका जो मेमना है वह खुद एक मंदिर था। So what is the point? तो यहाँ पर जो विषय है वो क्या है? We are the temple of God. हम परमेश्वर के मंदिर हैं। The glory of God must be परमेश्वर की महिमा revealed. और परमेश्वर की महिमा हम में रहनी चाहिए। So put your hands on your heart और अपने हृदय में आप अपने हाथों को रखिए। and say, I am the temple of God. मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। I will release the glory of God. और मैं परमेश्वर की महिमा को दिखाऊंगा। In my life मेरे जीवन में and wherever I go. और जहां कहीं भी मैं जाऊंगा। In Jesus' name. यीशु के नाम में। आमीन। Amen. We are the temple. हम मंदिर हैं। The glory of God will be released in us and through us. और परमेश्वर की महिमा हम में से और हमारे द्वारा वह निकाली जाएगी। And we see, we've been studying on the book of Acts. और हम लोग प्रेरितों के काम की किताब से देख रहे थे। And during the stoning of Stephen. और जब स्तुपनास पर पथराव किया गया।
They saw the glory of God there. वे परमेश्वर की महिमा को वहां पे देखे Stephen saw the glory of God. और स्तिफनास ने परमेश्वर की महिमा को देखा। When Peter and John did those wonderful miracles, जब पतरस और यूहन्ना ने जब वह अद्भुत चमत्कार किए, they saw the glory of God. वे परमेश्वर की महिमा को देखे। When even now when we see the miracles that are happening in and around us, that's the glory of God. और अभी भी जब हम देखते हैं कि जब चमत्कार और चिन्ह होते हैं हमारे आसपास, वो भी परमेश्वर की महिमा है। So how can we help the local church? तो कैसे हम स्थानीय कलीसिया को मदद कर सकते We हैं? must empower and equip the believers to manifest the glory of God. और जो हम विश्वासी हैं उसको हम सशक्तिकरण कर सकते हैं कि वह परमेश्वर की महिमा को प्रकटीकरण करें। We must equip the believers to keep this temple clean and holy. और हमको यह विश्वासियों को सिखाना है कि इस मंदिर को हम साफ और पवित्र रखें। So we must also teach the believers that we are to be holy not only in our personal life but also as a corporate. We are the temple of God. और हमारे विश्वासियों को सिखाना है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में पवित्र ना रहें, फिर लेकिन जो हमारा समुदाय का जो जीवन है उसमें भी हम अपने आप को पवित्र और स्वच्छ रखें। Right? So let's get into chapter 15. आइए हम जाएंगे अध्याय 15 की ओर। The local church is God's chosen people. स्थानीय कलीसिया परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। First Peter chapter 2 and verse 6. Let's read that. पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 6वां वचन। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 6वां वचन। Amen. Yes. First Peter 2:9 says, but you are a chosen generation. और पहला पत्र दूसरा का 9वां अध्याय 9 वचन कहता है कि हम एक चुने हुए समाज हैं। You are a royal priesthood. और आप एक राज पदधारी You हैं। are a holy nation. आप एक पवित्र राष्ट्र हैं। Okay, think about this now. आप इसके बारे में सोचिए। Among the 1 billion people in the nation of India, और जैसे कि 1 अरब जब लोग हैं इस भारत देश में, you are chosen. आप चुने हुए। You and I are chosen. आप और हम चुने हुए। We're chosen, God's chosen people. हम परमेश्वर के चुने हुए A लोग हैं। royal priesthood. हम लोग एक राज पदधारी हैं। A holy nation. एक पवित्र देश है। We are His own special people. और हम उनके विशेष लोग हैं। You know, for example, somebody gives you a special gift on your birthday. उदाहरण के रूप में आपके जन्मदिन पर अगर कोई आपको एक विशेष उपहार देता है तो What will you do with that gift? तो आप उस विशेष उपहार का क्या करेंगे? You keep it safely. आप उसको एकदम बचा के रखेंगे। You will not throw it here and there. आप उसको इधर उधर नहीं फेंकेंगे। You'll treasure it. आप उसको धन के जैसा बता के रखेंगे। Why? Because it's special to you. क्योंकि वो बहुत विशेष है आपके लिए। The same way, उसी प्रकार when God looks at us, परमेश्वर जब हमको देखते हैं He treasures us. वो हमको धन की तरह Hey, संभाल कर this रखते is हैं। my chosen people. वो कहते हैं कि ये मेरे चुने हुए लोग हैं। They are my children. वे मेरे बच्चे हैं। They listen to me. वे मुझे सुनते हैं। I will bless them. मैं उनको आशीष करूंगा। Imagine the people coming out of Israel, coming out of Egypt. He said, these are my chosen people. और देखिए कल्पना कीजिए कि जो लोग मिस्र देश से बाहर आ रहे थे इजराइल, उनको कह रहा कि मेरे चुने हुए लोग हैं ये। So when God is looking at us, He is looking at us as chosen. I chosen them. जब परमेश्वर हमको देखता है तो हमें वह चुने हुए लोग की तरह देखता है। When He's looking at the church, He's saying, this is my chosen people. और जब वो कलीसिया को देखता है तो कहता है कि ये मेरे चुने हुए लोग हैं। God dwells and rules over His people. और परमेश्वर उसके लोगों के ऊपर वह शासन करता है, उस पर राज्य करता है। So in the local church, और जो कलीसिया होती है स्थानीय, God dwells in that place. और परमेश्वर वहां पर विराजमान होता है, उस पर He वास rules करता in that place. है, उस जगह पे वह राज्य करता See, है। we make the plan, देखिए हम योजनाओं को बनाते हैं, but God is in control. लेकिन परमेश्वर नियंत्रित रहता है। We'll say, okay, 45 minutes worship, 45 minutes word ministry time. हम कहते हैं कि 45 मिनट की आराधना, 45 मिनट का वचन सेवकाई हो गई। But if God decides to do something, He will do it.
लेकिन परमेश्वर जब निर्णय लेते हैं करने के लिए वह जरूर करेंगे, because God dwells in that place. क्योंकि परमेश्वर उस जगह पर वास करते हैं। When His presence is there, we cannot control some things. और जब उनकी उपस्थिति होती है तो हम वहां पर किसी बात को नियंत्रित नहीं कर सकते। You know, if you read church history, जब आप कलीसिया का इतिहास को पढ़ते the हैं wonderful revivals that happen, और जितने सारे अद्भुत बेदारियां जो हुई, you know why they happen? आप जानते हैं वो क्यों हुई? Because it was the glory of God क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा थी, just touching people, लोगों को छू रही थी and they didn't want to go home. और वे घर नहीं जाना चाहते थे। They wanted to stay in the place, वे God's place. वे वहां पर परमेश्वर के जगह पर रहना चाहते थे। You know, if you read about the revival in it's called the Azusa Street Revival. और अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल को कहा जाता है, जब उसके बारे में आप पढ़ते हैं, उस बेदारी के बारे में It's a पढ़ते हैं, small church, एक छोटी कलीसिया, but this man was praying for revival. God send revival. और यह व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था उस बेदारी के लिए, कह रहा था कि परमेश्वर बेदारी को भेजिए। One regular service, और एक बहुत नियमित सभा, he had about 150 people in his church. लगभग 150 का लोग की कलीसिया The थी, glory of God came and resided over people. और परमेश्वर की महिमा आई और उस लोगों पर छा गई, People started crying. और लोग रोने लगे, People started praying. लोग प्रार्थना करने People लगे, started singing. लोग गीतों गाने People लगे, were fallen on their face, crying and praying and thanking God. और लोग दंडवत होकर वह प्रार्थना करने लगे, गीतों गाने लगे, Nobody परमेश्वर wants महिमा to go करने लगे। home. कोई भी घर नहीं जाना चाहता था। It's reported that, you know, there were thousands of people coming to that small hall. और यहाँ बताया जाता है कि हजारों लोग, तादाद में लोग उस छोटे से बड़े कमरे में आते थे, There were healings and miracles that were happening. और वहां पर चंगाई और चमत्कार हो रहे थे। To get place in the church, उस कलीसिया में आने के लिए people will come at 5 o'clock in the morning and stand in the line. और लोग वहां पर 5 बजे सुबह आकर खड़े होते थे उस कतार में। I want to go into the church. वे चाहते थे कि मैं उस कलीसिया के अंदर जाऊं। Now this is happening, you know, even in it's happening in Azusa Street. This is it's a rainy place. और एक वह अजूजा के सड़क में, स्ट्रीट में, वो एक वर्षा वाला जगह है, बारिश होती है वहां पे। People are holding an umbrella and standing to get into the church. लोग वहां पर छाता लेकर खड़े हैं कि वह कलीसिया के अंदर जा पाए। Why is that? यह ऐसा क्यों It है? is because when God dwells in that place, क्योंकि जब परमेश्वर उस जगह पर वास करता है, He rules over it. वह उसके ऊपर शासन करता है। It's not about the pastor. वह पास्टर के बारे में नहीं It's है, not about the worship leader. वह आराधना के अगुवा के बारे It's में not नहीं है, about the message. वह उस संदेश के It's बारे में not नहीं about है, the songs you sing. उस गीतों के बारे में नहीं है जो वो When गाते His हैं। glory comes, the story is changed. और जब उसकी महिमा आती है तो कहानियां बदल जाती हैं Deliverance comes. और छुटकारे आते हैं। The Lord, I love this verse, Joel 3:16. और मैं इस वचन को बहुत प्रेम करता Let's हूँ। read that. Joel chapter 3 and verse 16 in your books. और आपकी किताबों में पढ़िए, योएल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 16 वचन। प्रभु की आवाज सियोन से आती है, वह अपने लोगों के मध्य से अपने बल को प्रकट करेगा। The English verse says, the Lord will also roar from Zion. और इंग्लिश में कहता है कि प्रभु की आवाज या परमेश्वर सियोन से गरजेगा, And He will utter His voice from Jerusalem. और वह यरूशलेम से अपने बातों को कहेगा। The heavens and the earth will shake at the voice of the Lord. और जो स्वर्ग है, वह पृथ्वी है, वह परमेश्वर के आवाज से कांप उठेगी। You know, there are many passages in the Old Testament talking about the voice of the Lord. और बहुत सारे ऐसे भाग है जहाँ पे परमेश्वर के आवाज के बारे में कहा गया है पुराने नियम में। Jeremiah writes, he says, the voice of the Lord breaks the cedars of Lebanon. और जो लेबनान के सेदार है, परमेश्वर की आवाज उसको तोड़ डालती है। You know, it cuts through people. और वह लोगों को काट डालती है। That's what His voice does. वही उसका आवाज करता है। His voice is like the roaring waters, और gushing उसका waters. और उसका जो आवाज है वह उस पानी के जैसा है जो लहलहाता है। Now you tell me something. If you hear a lion roar, आप मुझे बताइए कि अगर एक शेर को जब आप गरजते हुए सुनते हैं, it will shake you. वह आपको हिला देगा। The Lord roars from the heavens. यह प्रभु स्वर्ग से गरजता है। It's just an allegory. It's to say that, you know, when you're in God's presence, the Lord can roar. He will release his authority over us. तो यह एक अलंकार, एक रूपक की तरह है कि जब परमेश्वर जब गरजता है तो वह अपने अधिकार को आपके ऊपर आने देता है। So
when you go back to your homes, जब आप अपने घरों में वापस जाएंगे, when you go back to your churches, जब आप अपने कलीसियाओं में वापस जाएंगे, remember that when you are standing, you're standing in the glory of God. आप ये याद रखिए कि जब आप खड़े हैं तो आप परमेश्वर की महिमा में खड़े हैं। So you must expect the glory of God to touch people's lives. आपको यह अपेक्षा करना है कि परमेश्वर की महिमा लोगों के जीवन को स्पर्श करेगी। You are the child of God. आप परमेश्वर के संतान हैं, You are called into his kingdom. आप उसके राज्य में बुलाए गए हैं। Amen. आमीन। Now, here's a problem that we may face. अब देखिए, कुछ समस्या हो सकती है जिसको हमको सामना करना पड़ सकता Now, है। the church may think, sometimes they may think it's too risky. तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ जोखिम उठाने वाली बात होगी। Or it's not something that we planned. यह ऐसा कोई बात नहीं है जिसको हम लोगों ने पहले से निर्धारित कर लिया इसका नियम। We planned 40 minutes worship, 40 minutes word. देखिए, हमने यह योजना बनाई थी कि 40 मिनट की आराधना होगी, 40 मिनट का वचन। So let's stick to that. तो आइए उस पर ही हम खड़े रहें। And so sometimes we are not open to what the Lord is doing. तो कभी कभी हम खड़े नहीं होते हैं उस बात को करने के लिए जो परमेश्वर करना चाहता है हमारे जीवन। So we must forget about all this recording and all of those things. That's not important. We must be open to the leading of the Holy Spirit. हमको भूल जाना चाहिए ये जो रिकॉर्डिंग के बारे में, ये सब बारे में जो पवित्र आत्मा की अगुवाई है उसको, उसके अगुवाई में चलने के लिए हमें अपने आप को खोल देना चाहिए। See, recording, all of that is important. We need it. देखिए, रिकॉर्डिंग ये सब जरूरी है, उसको हमको जरूरत पड़ती है। But that should not be a hindrance for us to be open to the leading of the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई के में आने के लिए वो हमारे लिए कोई रुकावट नहीं बननी चाहिए। Right? So when we pray for these kind of things, for the glory of God to come and move among us, और जब हम इस बातों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की महिमा हमारे मध्य में आकर चले फिरे, we must renew our thinking, transform our thinking. तो हमको जरूरी है कि अपने सोच को हम बदले, उसको बदल डाले। We must be willing to be a carrier of His glory. और आप उसके महिमा को ढोने वाले बनने के लिए आपको इच्छा करना पड़ेगा। Let's go to chapter 16. आइए अध्याय 16 में जाएंगे। Chapter 16 talks about the local church as the vine and the branches. और अध्याय 16 बताती है स्थानीय कलीसिया दाखलता और डालियां हैं। Okay, how many of you have gone into a vineyard where they make wine? जहाँ पे दाख रस बनाता है वहां पे कितने लोग गए हैं जहाँ पे दाख रस बनता है? एक दो। Only 2 people have gone. Near your places, there's no vineyard. तो आपके यहाँ पे सिर्फ 2 लोग गए। आपके यहाँ पे जगह पे कोई जहाँ पे दाख रस बनता है वहां पे सिर्फ दाखरस खाना है, देखना नहीं. सिर्फ दाख रस लेना है। Okay, let me explain this to you. तो लाइए मैं आपको बताता हूँ ये बात। See, in a vineyard, the vine grows at least maybe 10 feet up. जहां पर देखिए, जहां जो दाख की बारी होती है ना, वह जो दाख का जो दाख लता होती है वह 10 फीट लगभग वह बढ़ती है। So what the farmer does is he either ties a rope or he ties a steel thread to make the creepers climb up the right way. तो जो किसान क्या करता है वह एक रस्सी या फिर वह स्टील का जो तार आता है उसको बांध देता है ताकि उसकी लताएं जो हैं वह सीधी बढ़े, सीधी उगे। That's the preparation that you have to do. तो वह तैयारी हमें करनी है। Because what happens is it grows, and then from top the grapes begin to grow. और क्या होता है कि जब वो बढ़ते रहता है ऊपर से वह जो अंगूर या दाख जो अंगूर है वह उगना शुरू हो जाते हैं। Right? So Jesus is using this picture here. तो यीशु यहाँ पर इस चित्र का इस्तेमाल करते हैं। He's saying, I am the vine. वो कहता है कि मैं दाखलता हूँ, You are the branches. तुम शाखाएं हो। Whatever is in the vine will go to the branches. तो जो भी उस दाखलता में है वह उसकी शाखाओं में जाएगी। And if you look at a grape vineyard, और जब आप उस दाख की बारी को देखेंगे, if you look at it closely, अगर आप उसको नजदीक से in देखेंगे, between you will find, these, sometimes it's orange color, or sometimes it's, yellowish color, stems coming out. तो आप देखते हैं कि कभी-कभी पीला रंग का या नारंगी रंग का जो तना होता है वह निकलता है। Now, those are called weeds. और उसको कहते हैं झाड़ियां।
Now, if you do not cut them, अगर आप उसको नहीं काटेंगे they will continue to curl around that other plant, और वह उस पेड़ के इर्द गिर्द वह बढ़ना शुरू हो जाएंगे and it will just bring down the whole branch. और फिर वो पूरे जो शाखा है उसको नीचे कर देगी। It will be a waste. तो यह एक बर्बाद हो जाएगा It will be unfruitful. और उसमें कोई फल नहीं लगेगा। Now, Jesus is again using that. तो यीशु उसको भी फिर इस्तेमाल करते हैं। I'm the vine, मैं दाखलता you are the branches. तुम शाखाएं हो। Any branch that does not bear fruit कोई भी शाखा जो फल नहीं लाती must be cut down and thrown into the fire. उसको काटा जाना चाहिए और आग में झोंका जाना चाहिए। If I don't cut it down, अगर मैं उसको नहीं काटूंगा it will grow and destroy the entire plant. वह उगेगा और सारे पेड़ को वह जला डालेगा। Jesus goes on to say, यीशु जो फिर Says- आगे कहते हैं you remain in me तुम मुझ में बने रहो and you will bear fruit. तब जाके तुम फल लाओगे। What a beautiful example. कितना Jesus is सुंदर giving. उदाहरण है। He's saying, I'm the vine, you are the branch. Just like, I am the center, you are the branch. You have to go out. People will see you. तो कहते हैं कि जैसे कि मैं केंद्र हूं और तुम शाखाएं हो तो लोग तुम्हें देखेंगे। In the stem is very important. तो तना बहुत जरूरी है। I've mentioned before, my wife does a little bit of gardening, so I know a little bit of it. तो मैंने पहले बताया था कि मेरी पत्नी है वो बागवानी में बहुत रुचि रखती है तो मैं उसके बारे में थोड़ा जानता हूँ। So the stem is important because out of the stem will come the branches. क्योंकि तना से ही शाखाएं निकलेगा। The stem provides the food and the nutrients to the branches. जो तना है वही शाखाओं में वह फल या वह जो भोजन है वह उसको देती है। If I cut off the stem, अगर मैं उस तने को काट दूं the plant is gone. तो वह जो पौधा है वो If I चला cut जाए। off a branch, अगर मैं शाखा को काट दूं it can still grow. वह फिर भी उठ सकता New है, branches can come. नया शाखा आ सकता है। So here, Jesus is referring to the church as a branch. तो यहाँ पर यीशु जो कलीसिया है उसको तना के रूप में कह रहे हैं। I am the vine. मैं You are the दाखलता branches. तुम शाखाएं हो, मैं दाखलता हूँ। Remain in me, मुझ में बने रहो and I will remain in you. और मैं तुम में बना रहूंगा And you will bear fruit. और तुम फल लाओगे। But he goes on to say something very important again. और फिर वो जाके और भी बहुत ज्यादा जरूरी बात He बताते says, हैं। without me, you can do nothing. मेरे अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। So in ministry, as a local church, remember, without Jesus, we cannot do anything. और सेवकाई में एक सेवक के रूप में यह बात याद रखिए कि यीशु के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। But लेकिन remember that. इसे याद रखिए। Remember what we studied. There is a natural dimension. There is a spiritual dimension. तो ये बात याद रखिए कि कुछ स्वाभाविक क्षेत्र है, कुछ प्राकृतिक क्षेत्र है। In the spiritual dimension, without Jesus, we cannot do anything. देखिए आत्मिक जो क्षेत्र है उसमें बिना यीशु के हम कुछ नहीं कर पाते। Now, if you want to have men's conference, अगर आप जब पुरुषों का सभा रखना or चाहते you want to हैं, have youth conference, अगर आप युवाओं की सभा रखना चाहते you हैं, don't have to kneel down and pray for 3 days fasting and prayer. God, should I do this? आपको 3 दिन के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना नहीं करना, उपवास करके कि क्या परमेश्वर मैं ऐसे करूं। We have to plan it. आपके लिए इसको योजना बनाना पड़ेगा। And then we say, God, without you, this conference will be nothing. तो आप कहें कि परमेश्वर बिना आपके यह जो सभा है वह कुछ नहीं रहेगा। You release your work. फिर अपना काम को आप निकालिए, Release your glory. आपके महिमा को आप दिखाइए। You understand what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना Right. चाह रहा हूँ। So we plan, हम योजना बनाते हैं but we depend on God. लेकिन हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। He is the vine. वह एक दाखलता है, We are the branches. हम उस शाखाएं हैं। And we must learn to abide in Him. और हमको सीखना है कि हम उसमें बने रहें। What is the meaning of abide? उसमें बने रहने का मतलब क्या है? Abide means to stay or to rest in Him. बने रहना का मतलब होता है उसमें रहना या उसमें विश्राम करना। Okay, for example, उदाहरण के रूप में the class gets over. जब कक्षा खत्म होती है, I'll say, every one of you, मैं कहता हूँ कि आप लोग में से सब you stay here. तुम यहीं पे बने रहो, Don't come up. बाहर मत जाओ। I'll come back after 1 hour फिर मैं 1 घंटे के बाद and I आऊंगा will continue the session. और फिर मैं सत्र को जारी रखूंगा। So for that 1 hour, you'll are here, तो आप उस 1 घंटे आप यहीं पे बने रहे, just here, यहीं पे रहते हैं, resting here, यहीं पे विश्राम कर रहे हैं,
to abide means to stay and rest in God's presence. तो बने रहना का मतलब होता है कि वहीं पे रहना, वहीं पे बना रहना परमेश्वर की उपस्थिति में। It's not an activity base. यह एक कोई क्रिया नहीं है, कोई काम नहीं है, It's just to stay in His presence. जहां वहीं पे उसकी उपस्थिति में बने रहना। Sometimes, during my prayer times, I just sit and I think about Jesus. कभी कभी मैं अपने प्रार्थना के समय में मैं सिर्फ रहता हूँ और यीशु के बारे में सोचता रहता हूँ। No prayer requests at all. कोई प्रार्थना का निवेदन नहीं रहता। Say, God, I thank you for the cross. मैं कहता हूँ परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ क्रूस के लिए, Thank you for your love. आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ। It's just abiding, resting in who He is. और आप सिर्फ उसके उपस्थिति में उसमें बने रहिए कि Not वह praying. कौन है। Not praying, I want fridge, washing machine, all that is later. और यह प्रार्थना नहीं किया कि मुझे फ्रिज, वॉशिंग मशीन चाहिए, ये सारी बातें बाद में आती है। Just abiding in His presence. सिर्फ उसकी उपस्थिति में बने रहना। Many times, what I do is I sometimes I go into the room. I don't take an instrument also with me. कभी कभी क्या होता है, मैं अपने कक्ष में जाता हूँ, रूम में जाता हूँ, कोई यंत्र भी नहीं लेके जाता मैं। I say, God, I'm just going to sing songs. और मैं कहता हूँ कि परमेश्वर, मैं सिर्फ गीत को गाने वाला हूँ I'm just going to stay in your presence. You speak to me. और मैं आपकी उपस्थिति में आने वाला हूँ, आप मुझसे बातें I कीजिए। tell my wife and my children, I'm going to lock the door. Don't knock for some time till I come out. और मैं अपने पत्नी को, बच्चों को कहता हूँ कि उस समय तक मत खटखटाना जब तक मैं नहीं आऊं। I'll be in my room, just praying, और just मैं resting in His presence, और फिर मैं अपने कमरे में उसकी उपस्थिति में मैं just singing songs and understanding the songs, बना रहता हूँ, उस गीतों को गाते हुए, believing the songs. उसको गीतों को समझते हुए और उस पर विश्वास करते हुए। And many times, hours have gone just being there. और बहुत समय ऐसा हुआ कि घंटों बीत गए हैं वहां पे बने रहने It's में। not a waste of time. यह समय की बर्बादी नहीं है। It is His wine, His, His love, His cleansing, His fruitfulness is coming into us. और उसका प्रेम, उसका साफ करना, उसका जो उसको हम वह हमारे ऊपर आती है उस समय। There's a saying, no, Christians don't say lies, they sing lies. तो एक कहावत है कि जो ईसाई है, जो मसीही है, वह झूठ नहीं बोलते लेकिन वह झूठ गाते हैं। यीशु तेरा नाम सबसे अच्छा है। सबसे ऊंचा है, sure. But other things are सबसे ऊंचा, no. जी, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। क्या सचमुच ऊंचा है? दूसरे चीजें तो बहुत ऊंची रहती है उससे। Sometimes we put other things first and sing यीशु तेरा नाम. कभी कभी दूसरे चीजों को हम लोग पहला रख देते हैं और कहते हैं, गाते हैं कि यीशु तेरा नाम। For me it was one song which I used to, as a worship leader, every time I sing it, I say, God, help me to be like this. और एक गीत है जिसको मैं गाता था और एक आराधना के अगुवे के रूप में मैं सोचता था कि परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं इस प्रकार जी पाऊं। So I used to not sing that song. तो मैं उस गीत को गाता ही नहीं था। The words of the song is, 2 lines of that song is, every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. So जितना सांस मैं लेता हूँ, जितना क्षण में जगा रहता हूँ, मेरे अंदर आ, मेरे अंदर काम कर, यह गीत का जो बोल है। Now I know the point of the prayer is, Lord, it's a prayer. You're making a prayer. और यह एक प्रार्थना है जो आप बनाते हैं। I used to ask God, am I doing that? तो मैं अपने आप से पूछता था कि परमेश्वर, क्या मैं सचमुच से कर रहा हूँ? Is my every breath, am I praising you? Am I thankful to it? तो मैं कहता था कि परमेश्वर, मेरा जो हर एक सांस है, क्या मैं आपके लिए धन्यवाद कर रहा हूँ? क्या मैं इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ? So the point I'm trying to bring out is that without Jesus, तो जो मैं बात यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि बिना यीशु के, without the vine, बिना दाखलता के we cannot achieve anything. हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। We can start a church. हम एक कलीसिया का शुरुआत तो कर सकते हैं, We can get people to come.
हम लोगों को वहां पर बुला सकते हैं, We can have conference. हम सभाएं कर सकते हैं, You can have events. हम कुछ समारोहों को कर सकते हैं, You can have many programs. हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम को रख सकते हैं। But when Jesus may look, if he looks at it and he says, Anda. जब यीशु हमको देखेंगे तो कहेंगे अंडा, शून्य। Why? Because I was not there in that. क्यों कि मैं वहां पे नहीं था। But here, Jesus is saying, I'm the vine. तो यहाँ पर यीशु कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ, You remain in me. तुम मुझ में बने रहो, Then you will bear fruit. तब जाके तुम फल लाओगे, You will see the fruit. तब आप फल को देखोगे। Amen. आमीन। Right? So this is a responsibility of that we should always pursue the more of God. और इसीलिए हमको यह बात जारी रखना है कि हमको हमेशा जितना ज्यादा परमेश्वर में बने रहें वो हमारे लिए भला है। Okay, everyone with me? सब मेरे साथ है। Okay. Let's go to the next chapter. आइए अगले पाठ में जाएंगे। The local church is the lampstand. और जो स्थानीय कलीसिया है वह एक दीवट है। Now, again, God is using a picture of a lampstand to the church. देखिए अब परमेश्वर एक तरह का एक चित्रण करते हैं एक दीवट की तरह जो कलीसिया के लिए है। Right now, how many of you've seen a lampstand, right? आपने दीवट देखा है? Yes, the stand, and then you have a lamp over it. और आप देखते हैं कि एक जगह होता है जहां पर दिए को रख के रखा जाता है। Right? So nowadays we have these electronic lampstands. आजकल तो हमको जो इलेक्ट्रॉनिक लैम्प स्टैंड हमको मिलते हैं। But in the old covenant, there were lampstands with candlesticks, pointing out, so they would light the lampstand. और पुराने नियम में वैसे तख्ते होते थे जहां पर वह दीवट का जो दिया रहता था वह बाहरी ओर निकला रहता था ताकि वह प्रकाश को पहुंचा पाए। Now, in the book of Revelations, जैसे प्रकाशित वाक्य की किताब में Revelations chapter 1, प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय John is writing. यूहन्ना लिख रहा है, He's in heaven, वह स्वर्ग में है, and he's saying, I saw the Son of Man, वह कहता है कि मैंने मनुष्य के पुत्र को देखा and I saw 7 golden lampstands. और उसने कहा कि मैंने 7 सोने के दीवट को देखा। And in the midst of those 7 lampstands, Jesus is walking. और वह कहता है कि वह 7 दीवट के मध्य में यीशु उससे होकर जा रहे हैं। What does the lampstand refer to? और वह जो दीवट है उसको क्या दर्शाता है? The lampstand refers to the church. जो दीवट है वह कलीसिया को दर्शाता है। In this scenario, Jesus is talking about 7 churches that he is exhorting and rebuking. और इस दृश्य में वह उस 7 कलीसिया को परमेश्वर क्या कर रहा है? डांट रहा है और समझा रहा है, बुझा रहा है। Right now, look at this. The lampstand, without a lampstand, there will be no light in this place. और बिना दीवट के कोई भी जगह में इस जगह पे कोई भी प्रकाश नहीं रहेगा। Recently I went to Kohima in Nagaland. और बहुत हाल ही में मैं कोहिमा नागालैंड में गया। It's a mountainous area. वह एक पहाड़ी क्षेत्र है। And when it starts getting dark, और जब अंधेरा होने लगा लगता है, if the hotel where I was staying, if you come out, you can see the entire city. और जिस होटल में रह रहा था तो जब आप बाहर आते हैं तो आप वहां से पूरे शहर को देख सकते हैं। In the daytime, it looks very beautiful. दिन के समय यह बहुत सुंदर दिख पड़ता है। All houses on different mountains. अलग पहाड़ों पे अलग अलग घर आप देखते But the हैं। moment it starts becoming 6 o'clock in the night, evening, और जब शाम को 6 बजते हैं, it's a beautiful sight. It starts becoming dark. और जब अंधेरा होता है बहुत सुंदर दृश्य होता है। Slowly you'll see lights coming on. आप देखते हैं धीरे धीरे कि जो प्रकाश होते हैं वो आने लगते हैं। By 7 o'clock, you can see a sea of light. और everywhere. 7 बजे शाम को आप देखते हैं समुद्र होता है प्रकाश का। And the picture that comes to my mind is Jesus walking among those lamps. और those जो lights. चित्र आता है कि यीशु मसीह उस दीवट से होकर वो चल रहे हैं। What does light do? It expels darkness. तो प्रकाश क्या करता है? वह अंधकार को दूर करता है। When there is no lampstand, Jesus also said, you don't take a lampstand and you don't put it under the bed. और यीशु भी कहते हैं कि आप कुछ दीवट को लेकर उसको आप बिस्तर के नीचे नहीं रखते, You put it up on the lampstand.
आप उसको तख्ते पे दिए You दीवार put पर it रखते हैं। high so that everyone will get the light. आप उसको उस तखे पर रखते हैं जहां पर वहां से सब लोगों को प्रकाश पहुंचे। Have you ever wondered why the tube lights are not fixed down? कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये ट्यूबलाइट नीचे क्यों नहीं रखा गया है? It can be fixed down. ये नीचे लगाया जा सकता है, But if it's up, because when it's up, the light reflects everywhere else. या ऊपर है क्योंकि जब ये ऊपर रहता है तो जो उसका प्रकाश नीचे की ओर या हर जगह Jesus प्रतिबिंबित is होता है। saying, you are the lampstand. यीशु कह रहे हैं कि तुम दीवट हो। So when you go to places, go to darkness, जब तुम जगहों में जाते हो और अंधकार में जाते हो, you will bring the light of God. तब जाके आप परमेश्वर के प्रकाश को लेकर आओगे Darkness will be released. और जो More. अंधकार है वो दूर हो जाएगा। So he's again drawing a picture. फिर वहां पर वह चित्र बना रहे हैं। He drew a picture of the vine and the branches. और जैसे कि उसने दाखलता और शाखाओं का चित्र बताया, Now he's saying, you are the lamp. अब वह कह रहा है कि तुम एक दीवट हो, दिया हो। Jesus said, you are the light of the world. वह कहता है कि तुम इस संसार के प्रकाश हो। That is personally. वह एक व्यक्तिगत रूप में, As a local church, you are the lamp. You're a lampstand. और एक स्थानीय कलीसिया के रूप में आप एक दीवट हैं। So we must be people who walk in the light. और हम को ऐसे बनना जरूरी है कि हम ऐसे लोग बने जो प्रकाश में चलते हैं। We must provide illumination, or we must release the glory of God wherever we go. और जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, आज काम करते हैं, रहते हैं, वहां पे हमको प्रकाशमान होना है और परमेश्वर की महिमा को दिखाना है। The lampstand should keep burning. और जो दीवट होता है वह हमेशा जलता रहता है। That's why Jesus gives that beautiful example और फिर यीशु बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं of the 10 virgins. और 10 कुमारियों का। But the point here is, see, imagine you have a lamp and you don't have the oil to keep it burning. देखिए, आप कल्पना कीजिए कि आपके पास तो दिया तो है लेकिन उसमें तेल नहीं है कि उसको आप हमेशा जला के रखें, It's going to go off. तो वह बुझ जाएगा। You must have the oil ready, आपके पास वह तेल होना बहुत जरूरी है and that will keep the lamp continue to burn. और वह उस दिए को लगातार जलते रहने में मदद करेगा। The Old Covenant talks about the oil as the Holy Spirit. और पुराना नियम उस तेल को पवित्र आत्मा के रूप में बताता है। So we must rest in God and expect God to release His light in and through us. और हमको यह अपेक्षा करना है कि परमेश्वर जो प्रकाश उसका है वह हम में से हमारे जरिए वह बहा निकालता रहे। Amen. आमीन। So I think we've completed all. Just hold on, let me just check. Yes. So we've completed all 10 aspects of the local church. तो हम लोगों ने जो 10 बातें हैं स्थानीय कलीसिया को लेकर उसको हम लोगों ने भी पूरा कर लिया Right? है। Now these are pictures of the local church. और यह चित्रण है स्थानीय कलीसिया का। Right? So even as maybe you can go back, read a little more whenever you'd like to. और जब हो सकता है कि आप वापस जाएं, थोड़ा ज्यादा और अध्ययन करें जब भी आपको समय मिले, जब आपको लगे। But remember that we are the local church. अब यह याद रखिए कि हम लोग स्थानीय कलीसिया हैं। Some of you are from Varanasi, कुछ लोग आपसे यहाँ पे बनारस से हैं, some from Mumbai, कुछ मुंबई से हैं, some from Odisha, कोई उड़ीसा से है, whatever states you're from. कहीं से भी आप हैं, किसी भी In राज्य से your हैं, local church, आपके स्थानीय कलीसिया में you are आप all of हैं this. ये सारे। Let's go back. What are you? तो आइए देखेंगे कि आप क्या क्या हैं। One, you are, as a local church, you are the body of Christ. और आप परमेश्वर के देह हैं स्थानीय कलीसिया में। As a local church, you are the family of God. और स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर का परिवार है। Three, as a local church, you are the pillar of truth. और एक स्थानीय कलीसिया के रूप में आप एक सत्य के स्तंभ हैं। Four, as a local church, you are an army. और एक स्थानीय कलीसिया के रूप में एक सेना है आप। Five, as a local church, you are the bride of Christ. स्थानीय कलीसिया के रूप में आप मसीह की दुल्हन हैं। Six, as a local church, you are the house of prayer and worship. आप एक स्थानीय कलीसिया के रूप में आराधना और प्रार्थना का भवन है। Seven, as a local church, you are the temple of God. आप सातवां, जो आप परमेश्वर के आराधनालय हैं एक स्थानीय कलीसिया के The रूप Holy में, Spirit resides in you. और पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। Eight, आठवां, as a local church, you are God's chosen people. स्थानीय कलीसिया के रूप में आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। Nine, as a local church, you are the vine and He is the branches. नवा, आप स्थानीय कलीसिया के रूप में वह दाखलता है और आप डालियां हैं। 10, as a local church, you are the lampstand, bringing दसवां, light. आप
एक स्थानीय कलीसिया के रूप में आप दीवट है जो प्रकाश को लेकर आता है। Amen. So we will stop here तो हम यहाँ पर बंद करेंगे and then we'll get into the next chapter, which is chapter 18. Is that right? यस, और हम लोग 18वें अध्याय में जाएंगे So chapter 18 we'll pick up from tomorrow. और 18 अध्याय को हम कल से उसका अध्ययन करेंगे। Any questions? कोई प्रश्न है क्या आपके पास, Any thoughts you want to like to share? या कोई विचार जो आप हमसे बांटना चाहते हैं, कृपया माइक दीजिएगा। Yeah. Pastor, you said that the oil is in Old Testament, it is the Holy Spirit. So about the 10 brides, so the brides who were fools. Yeah. So what does it consider? Is it considers the word of God, or it is the Holy Spirit's fruits in us? Yeah. So see, the point of that parable is to talk about the suddenness of Jesus coming. और जो बात है उस दृष्टांत का वह इस प्रकार है कि वह यीशु का अचानक से आना। Right? It was not focusing on the oil being the anointing or anything. I just gave it as an example. तो मैं वह इस बात को केंद्रित नहीं कर रहा है कि वहाँ पे तेल है या अभिषेक है, उसको सिर्फ एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल See, किया गया। the 10 virgins were waiting for the groom, तो 10 जो कुंवारियां थी वह दूल्हा के इंतजार कर रही थी, but suddenly the groom came लेकिन जो दूल्हा हुआ अचानक आया, and they didn't have the oil ready with them. तो उनके पास वो तेल तैयार नहीं था। So the point of that parable is the suddenness. Suddenly Jesus will come. तो जो बात यहाँ पर उस दृष्टांत से है कि जो एकदम अचानक जो आना है यीशु का, उसके बारे में। So that was the point of that parable. तो वह उस दृष्टांत को बताता है। So it doesn't consider the 9 fruits, or it doesn't consider the word of God. No, it doesn't. It doesn't. तो यह 9 जो गुण है उसको नहीं दर्शाता है, यह यीशु मसीह के अचानक से आने को दर्शाता It doesn't. No. है। Continue to pray, be awake and continue to pray. Yeah. So see, you learned in hermeneutics, right? Applying the word in the right way. The point what Jesus was trying to bring is the suddenness of Jesus' return. तो आपने व्याख्या विज्ञान में सीखा होगा कि किस प्रकार सही तरीके से हम उसका अर्थ निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर था कि किस प्रकार वह अचानक जो आने वाला बात है यीशु का, उसको दर्शाता है। So we must not come up with our own things in between. So that's why you take a text, you have to put it into context. That's wisdom. तो आप क्या है कि आप किसी परिच्छेद को लेके उसको आप संदर्भ में रखिए, तो वह बुद्धि बनता है, बुद्धि की बात होती है। Anything else? और कुछ? God's chosen people. Yeah. प्रश्न है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग, क्या आप इसको समझा सकते हैं? और See, the Peter writes and he says, you are a chosen generation, a royal priesthood. और वह कहता है कि हम लोग चुने हुए वंश, Now, राज पदधारी हैं। now we know that salvation is a choice that we make. तो उद्धार, हम यह जानते हैं कि उद्धार एक चुनाव है जो हम बनाते हैं। Right? So now, for example, there are 1.3 billion people. अब जैसे कि 1.3 बिलियन लोग हैं, Jesus died for all of them in India. और यीशु मसीह सबके लिए मरे भारत में। But we are only few people who believe in Jesus. लेकिन कुछ ही लोग हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं। Right? Now that we have believed in Jesus, जब हम यीशु पर विश्वास कर दिए होते हैं, we are his chosen people. हम उसके चुने हुए लोग होते We हैं, are a royal priesthood. हम लोग राज पदधारी होते हैं। So even Ephesians, he says, Ephesians chapter 1, who predestined us to be his children. और उसने पहले से ही निर्धारित कर दिया है, इफिसियों के पहले अध्याय में कहता है कि हम उसके संतान बने, पहले से ही पूर्व निर्धारित कर दिया है। Predestined doesn't mean that God is, see, he's done the work. देखिए, इसका मतलब यह होता है कि उसने काम कर दिया। Once we believe in Jesus, all these blessings are there. तो
जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो आशीष हमारी हो जाती है। So the moment we become believers, we are his chosen people. तो जिस क्षण हम विश्वासी बन जाते हैं, बनते हैं, हम उसके चुने हुए लोग हो जाते Understood, right? हैं। ऐसा Yes. No, on all peoples. Yeah. So the thing is, see, we were all unbelievers at times. देखिए, तो प्रश्न है कि अंत में परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपनी आत्मा को सब लोगों पे उड़ेलेगा। तो उत्तर है कि हम लोग एक समय में हम सब अविश्वासी थे Holy Spirit came and changed the heart. We became believers. और पवित्र आत्मा आया और उसने हमारे मनों को बदला और हम विश्वासी बन गए। Right. So now also, when Peter is saying, he will pour out his Holy Spirit, और अभी भी जब पतरस कह रहा है कि मैं अपने पवित्र आत्मा को उड़ेलूंगा, he will. वह अपने आत्मा को उड़ेलेगा। There will be people who will believe. कुछ लोग होंगे जो विश्वास करेंगे There will be people who will choose not to believe. और कुछ लोग ऐसा होंगे कि जो चुनाव करेंगे कि वह विश्वास ना So करें। he'll not force anybody. You have to believe. No. वह किसी को बलपूर्वक दबाव नहीं डालेगा कि नहीं तुमको विश्वास करना ही पड़ेगा। I'll नहीं, give you this example. Think about this. आप एक मैं उदाहरण दूंगा, आप In इसको the book of सोचिए। Revelations, प्रकाशित वाक्य किताब में years Jesus will live on earth in Jerusalem. यरूशलेम में 1000 साल तक यीशु रहेंगे। They can go and see Jesus, talk to Jesus. वे यीशु के साथ पास जाएंगे, उससे बात कर But सकेंगे। after the 1,000 years, उसके 1000 साल के बाद Satan is released. जब शैतान को छोड़ा जाएगा Still, he will be able to tell people he's not Jesus, he's not the Son of God. और तब भी वह कहेगा कि यह यीशु नहीं है, परमेश्वर का पुत्र नहीं है। After seeing Jesus, यीशु को देखने के बाद भी after tasting his love, और उसके प्रेम को स्वाद, still Satan will entice them saying, I'll give you money, I'll give you power, and they'll go away from Jesus. और फिर शैतान उनको लोभित करेगा कि तुमको पावर दूंगा, शक्ति दूंगा, मैं पैसे दूंगा, और वो यीशु को दूर से हटाने की कोशिश करेगा उनसे। So till the end of time, that will be there. तो अंत समय तक भी वह होगा ही। But when we believe, लेकिन जब हम विश्वास करते then हैं we are the chosen royal generation. तो हम चुने हुए राज पदाधिकारी हो जाते हैं। Yes, bias, the relationship, holy life. So we can say that if I'm doing so what I feel. What about Paul? Paul, he was totally against with the Lord's faith. He was preaching whatever he can do, he did it. Also, God is how he can destroy the Lord. So how he can choose it? Now, you need to understand the context. तो देखिए, इसके लिए आपको संदर्भ को समझने की He आवश्यकता was है। zealous for God. वह परमेश्वर के लिए ईर्ष्या करता था। He was studied under Gamaliel. वो गमेरिया के अंदर अध्ययन किया था। He was zealous for God. He knew everything about the Old Testament. वह पुराने नियम के बारे में सब कुछ जानता था। Now, why was he upset? वह क्यों इतना दुखी था? How can this Jesus person come and say he's the Messiah? कैसे वह व्यक्ति है कि यीशु कह सकता है कि वह मसीहा है? Not possible. वो हो ही नहीं सकता। So he had a zeal. It was, yes, he was, he wanted to kill everyone who were following Christianity. That's because he was so zealous for God. वह बहुत जलन रखता था ये परमेश्वर से। हाँ, वो लोगों को मना करता था मसीह को मारने के लिए। So God took that zealous, that passion, that desire, and chose him to be the light to the Gentiles. और परमेश्वर ने फिर उस जलन को, उस ईर्ष्या को जो उसके पास था, उसका इस्तेमाल करके अन्य जातियों को अगुवा बनने के लिए He was उसको not चुना। against God. वो परमेश्वर का विरोध नहीं था। He was a very learned man. वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था, But he didn't understand some things. लेकिन वो कुछ बातों को नहीं समझ So पाया। even when he's saying, I was zealous for God and the things of God. मैं परमेश्वर के बातों के लिए और परमेश्वर के चीजों के लिए मैं बहुत जलन रखता था, But God opened my eyes. लेकिन परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोल दिया। Right? प्रश्न है कि आपने कहा था पास्टर जी ने कि शुरुआत में कि पासवान लोगों को मदद करना चाहिए, तो किस तरीकों से पासवानों को लोगों को मदद करना चाहिए, ये प्रश्न है। Yes, there are many ways that pastors can help people. देखिए, बहुत तरीके हैं जहाँ पर पासवान लोगों को मदद कर सकते It हैं। can be as simple as helping them to walk in faith, वह जैसे कि साधारण रूप से विश्वास में चलने भी हो सकता है, helping them to, maintain disciplines of praying and reading the word. उनको मदद करने की आप वह अनुशासन में रहे कि वे प्रार्थना करें और वचन को पढ़ें। Right? It could be something as that. जितना साधारण हो सके उतना हो सकता है। See, when people who are unwell, they come to me for prayer.
at church. जब लोग बीमार होते हैं और मेरे पास आते हैं कलीसिया में प्रार्थना के लिए, I pray for them मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ and I tell them, see, what you can also do is when you go back home, you pray in faith. तो मैं ये भी कहता हूँ कि जब तुम घर जाते हो वापस तो तुम भी विश्वास में प्रार्थना करो। Right? That's all. That's simple as that. तो वैसा ही है, वैसे ही सरल है ये। Right? Sometimes I send them a video. कभी Listen to this. कभी कभी मैं उनको कुछ वीडियो संदेश भेजता हूँ कि आप इसे सुनिए, देखिए। Right? So again, it depends on the level of spirituality that they are in. तो वह निर्भर करता है कि वह किस आत्मिक स्तर में वे हैं। So these basic. So sometimes people don't understand Lord's table. और कभी कभी जब लोग होते हैं जो प्रभु के मेज को नहीं समझते हैं, So we help them to understand. So that's that extra effort of sitting with them and talking to them. और आप उनको बैठ के समझाइए, तो आपका जो जो प्रयास है आपने उनको समझाने के लिए किया है वो करना पड़ता है। That's the effort that we must take. Hmm. प्रश्न है कि जब कुछ लोगों को या व्यक्तियों को पैसे की जरूरत है तो पासवान उनको मदद करते हैं, तो लोग कहते हैं कि तुमने अपना धर्म पैसे के लिए बदल दिया, तो क्या मदद करना गलत है? यह प्रश्न है बहन। See, it's good to help one another. देखिए, बहुत भली बात है कि हम एक दूसरे को मदद करें। Now, this is a challenging thing that's happening right now. यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात है जो अभी हो रही है। So we must be very clear when it comes to money, dealing with money in the church. हमको बहुत साफ रीति से जो कलीसिया में पैसे की लेन देन होती है उसका पालन करना है। Right? Because we may face many repercussions if we deal with it the wrong way. अगर हम इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमको बहुत गलत परिणाम हो सकता है। It's good to help, यह सही बात है मदद करने के लिए, but we need to be careful. We need to be wise also on how to do that. तो हमको बहुत ध्यानपूर्वक और हमको बुद्धिमानी से बात करनी है कि इस बातों को हम कैसे करें या उसको कैसे रखें। There's a question here. How do you define revival? Does it have to be like Azusa Street revival? No. यहाँ पे प्रश्न है कि पास्टर कैसे आप बेदारी की परिभाषा देते हैं, क्या यह अजूजा स्ट्रीट के बेदारी की तरह होनी चाहिए? तो उत्तर है नहीं। The revival can be in any way. God decides how to do it. और बेदारी कहीं भी हो सकती है, परमेश्वर निर्णय लेते हैं इसको कैसे करना है। All right, so let's close. We'll spend maybe on Friday. We'll have some extra time for questions. और आइए हम उसको समाप्त करेंगे। हो सकता है शुक्रवार को हम लोग को थोड़ा और समय मिलेगा प्रश्न को लेने के लिए। Right, let's pray and close. आइए हम प्रार्थना करके इसको क्लोज करेंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने जो स्थानीय कलीसिया के अलग अलग भाग है और कार्य है उसको सिखाने में हमें मदद की पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि इस सच्चाई को हमारे मनों में इतनी गहराई से आने दीजिए ताकि परमेश्वर जब हम सेवकाई में जाएं, प्रभु जी इन सब बातों को जो हम लोगों ने सीखा है उसे करने पाए। और प्रभु जी, आपकी कलीसिया जो आप चाहते हैं, उस कलीसिया जो आप बनाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, उसका हम निर्माण करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जहां पर आपका वचन जाता है वहां पे प्रकाश होता है पिता परमेश्वर। जहां पे आपकी कलीसिया को अच्छी तरह से नहीं बनाया जा रहा है, हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन के द्वारा वहां पे भी आपकी बातों को पहुंचाई जाए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी कलीसिया जो आप चाहते हो बनने पाए। आपके दास को आपने मदद किया, मुझे भी अनुवाद करने के लिए आपने सहायता किया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। दोपहर के सत्र को भी प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा मान सम्मान गौरव प्रशंसा महिमा हम आपको देते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल मिलेंगे आपसे।